So now let us move on to another topic. What is the other topic? What is one big indicator of improving economy? Improving economy में vehicle sales जब भी बढ़ता है, it is always deemed that our economy is in good shape. अच्छा, ये क्यों है? Why is this important? क्योंकि there are certain elements out there who are anti-Indian or anti-Indian economy. ऐसे थोड़े vested interest groups है. अब most of you know which are these groups and which are the political parties which are supporting them, which are the foreign NGOs वगैरह जो ये सब चीजों में इन्वॉल्व है. वो लोग लगातार यही बोलते रहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी. इंक्लूडिंग योर ग्रेट मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प सेड इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी. अरे काहे काहे का डेड इकोनॉमी? बहुत स्ट्रॉन्ग सर्ज इन व्हीकल सेल्स इन जून. ये तो वॉर के टाइम पे भी ऐसा डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल आप इधर देखिए, मारुति सुजुकी 23%, टाटा मोटर का देखिए 67%. व्हाट अ सुपर ग्रोथ इन टाटा मोटर पर्सनल व्हीकल. ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल का कमाल है. मारुति में जो सीएनजी बेस्ड व्हीकल्स, इसकी बुकिंग में there is a tremendous increase. In Tata Motors, there is a tremendous increase in their EV sales. So all of these are happening. Mahindra is straight away bounding up on EV sales. So all of these are making a big difference. 27. ये पूरा लिस्ट आप देखेंगे, all of them including Skoda and MG and Kia and Toyota, everybody is having a great time. Which means that when do you go and buy a car, and or you buy your second car, or you replace your car and all that, when you think that things are okay with me, with my business, with my well-being, and you're not afraid of the future. War तो अभी खत्म होने आ गई, खत्म हो चुकी. शायद कोई यहाँ वहाँ कोई फ्लेयर अप आ जाए, वो अलग बात है, बट आई डोंट थिंक एनीथिंग इज गोइंग टू हैपन. दैट इज नाउ समथिंग विच वी आर ऑल पुटिंग बिहाइंड अस. एक सिर्फ Hyundai में थोड़ी सी नेगेटिव आ गई एंड द मार्केट डायरेक्टली पनिश्ड. तो इधर देखिए, ये तो मैंने बता दिया. ये अपना पैसेंजर व्हीकल, ये सब जो ईवी हैं वो टू व्हीलर्स में भी आ रहे हैं. द ईवी जंप इज ऑल्सो फेल्ट बाय टीवीएस मोटर. टीवीएस मोटर हैज मूव्ड एग्रेसिवली इनटू ईवी टू व्हीलर्स. तो वहां पर इट्स टोटल चेज sales jumped by 47% year on year. Isn't that really, really something big? While EV two-wheeler sales more than tripled. Now you see what is happening in the market. EV adoption is becoming very, very fast, and that's a place to look at. Okay, it is not just two-wheelers, it is also commercial vehicles. Commercial vehicle sales were also strong. Tata Motors CV sales, Tata Motor passenger vehicle देख लिया अपन ने. Tata Motors CV sales rose about 35%. Okay, that is also very good. These are your trucks and other commercial vehicles that they come up with, and that matters because CV sales are closely linked to goods movement and the business activity. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि all of this data put together is a very good indicator that there is nothing wrong with the economy as a whole. और ये जो भी ये cannot spread कर रहे हैं, ये जो झूठी बात फैला रहे हैं कि भाई अपनी इकोनॉमी टूट गई है, इसमें कोई दम नहीं है, और इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, ये सब नॉनसेंस है. ये पॉलिटिकल गेम है. ये एक पूरा एक कोई एजेंडा चल रहा है, कोई टूल किट चल रहा है. इसको आप पूरा इग्नोर करिए, नंबर्स को देखिए. ग्राउंड रियलिटी इज समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. Right? So that is the lesson which, or that is the takeaway that we get from this. Okay, so be firm in your conviction that Indian economy is improving and therefore our markets will also improve. Okay. अच्छा, न्यूज के तौर से लेट्स गो टू दी आईटी मार्केट. आईटी मार्केट की तो बैंड बजी हुई है, लगातार बेचे जा रहे हैं. एवरीथिंग इज गोइंग डाउन द ट्यूब. अब इसमें दो कंपनी के न्यूज जो थे, मुझे लगा कि ये एकदम कोई नया चीज है, बिग डेवलपमेंट है. उसमें एक है हेक्सावेयर और दूसरा है एचसीएल टेक. हेक्सावेयर ने क्या कहा? दे हैव गॉन एंड जॉइन क्लॉड्स एलीट क्लब. और ये क्लॉड वगैरह जो है, ये एंथ्रोपिक जो हाहाकार मचा हुआ है पूरा एआई के वर्ल्ड में. नाउ हेक्सावेयर हैज बिकम अ reseller of sort, or become an agency for
Claude and Anthropic and all, and Anthropic doesn't give it to everybody. So the very fact that Hexaware has been made one of the people in India is a big victory for them. Acha. Similarly, HCL Tech has gone and done a very big $1.1 billion Mercedes AI deal. इसके पहले ये लोग ने एक और डील करा था, which was taking up a percentage stake in Servam AI, which is your India born AI thing, sovereign AI. और इसके बारे में शायद मैंने या तो लिखा था या तो कहीं और कमेंट किया था कि भाई एंथ्रोपिक ने, ये शायद मेरे पिछले चार्ट्स एंड बियॉन्ड में ही है, न्यूज में मैंने कवर की थी, किया था, तो एंथ्रोपिक, द गवर्नमेंट इन द यूएस had banned, and you know, the two products of Anthropic, and that was Mythos Phi, and then there was one more, two of them, both of them were banned for foreigners. So then that led to the situation that people had to rely upon domestic AI. So sovereign AI was the key thing. तो HCL Tech was the first mover. उसने जा करके sovereign AI में एक बड़ी डील कर दी. Now HCL Tech has landed another big deal, and yesterday's news was that HCL Tech has landed one more big deal. So I think HCL Tech has been a terrifically fast mover, a very nimble mover in this, and one should definitely keep a track. बाकी सब TCS, Infi वगैरह तो पिट रहे हैं, but then I think one should keep an eye on Hexaware and HCL Tech. Again, not this is not any recommendation. This is just a comment on the developments on the company, and a look at the charts. Both of them in a big decline. Left side Hexaware, right side HCL Technology. जो IT में प्रेशर डाउन था, विद दैट प्रेशर दे हैव ऑल कम डाउन. वो आप नीचे देखिए, दिस इज आवर न्यू ट्रेडर ट्रेंडर ऑसिलेटर. ट्रेंडर ऑसिलेटर इज वेरी नेगेटिव ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, but trender oscillator is now cut its trigger line, and then the positive component has come off its base and starting up, and if this uptrend continues, then it will flip down and then possibly give a buy signal sometime later. But then the market is responding to the good news in Hexaware. The market has also started responding to the good news in HCL Tech. Faster in Hexaware, a little more slowly in HCL. But then these are two IT companies that I would look. Now, why would I look at these two and let's say not something like Persistent System and Coforge or Tech Mahindra and Emphasis, which are leading? सो ये जो मिड कैप्स है, दे हैव गॉन अप. इसके लिए आप अगर देखें तो आईटी में एक बेलवेदर स्टॉक होता है, दैट इज एक्सेंचर. ठीक है, ये एक्सेंचर इज लाइक द बेलवेदर स्टॉक. और ये टीसीएस, इन्फी, विप्रो वगैरह वगैरह जो अपने लीडर्स है, दे आर ऑलवेज बेंचमार्क टू एक्सेंचर. और हमेशा पास में एक्सेंचर यूज्ड टू ट्रेड एट अ प्रीमियम टू ऑल आवर इंडियन कंपनीज. ओके, एंड अभी हाल में, अभी जस्ट पिछले 6-7-8 दिन के अंदर एक्सेंचर के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए और उनके कमेंट्री आए, एंड दैट वाज वेरी वेरी पुअर, जिसके कारण एक्सेंचर वाज बीटन डाउन वेरी बैडली. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, see your TCS, Infi, Wipro and all have been falling down anyway, and your Coforge and all that has also beaten down. In earlier charts and beyond, for those who have been part of my charts and beyond, आपको शायद याद होगा कि मैंने कवर किया था कि कोफोर्ज, परसिस्टेंट वगैरह 55-60 के पी पे ट्रेड कर रहे थे, एंड हाउ आई सेड दैट दैट इज टू हाई and too much varied from where the large cap IT is trading, and that they should fall. Okay, वो तो गिरे तो थे, and then the P and all came down to somewhere around 35 to 40. ये भी एस्पेक्ट मैंने कवर करा था पिछले कोई चार्ट्स एंड बियॉन्ड में. इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अगर पहली बार जुड़े हो या रिसेंटली जुड़े हो, मेरे पुराने चार्ट्स एंड बियॉन्ड के वीडियोस जाके जरूर देखिएगा. यू विल गेट अ kind of a continuing thread of idea of the perspective and of the positioning that you have to take. अच्छा, ये अभी करते करते ये जो मिड कैप आईटी के जो वैल्यूएशन है, वो दैट इज अबाउट 35 to 40 वहीं रहे.
Whereas large cap IT, which has still been under pressure, अच्छा ये भी क्यों हो रहा है? क्योंकि large cap IT में selling pressure है from FIs. और वो as long as the FI exit is going on, they will sell the large cap IT because they own truckloads of large cap IT, they own truckloads of large cap banks, etc. तो वो सब तो चल ही रहा है. तो अब धीरे धीरे घटते घटते तुम्हारा टीसीएस, इन्फी वगैरह, विप्रो वगैरह कुछ 15 पी के आसपास आ गए, विच इज अमंग द लोएस्ट इन मेनी इयर्स नाउ. But even more important than this is your Accenture, which I said is the bellwether. अब Accenture का पी आ गया at 10 times. तो अभी अगर फ्यूचर फॉर दिस बिजनेस ऑफ Accenture and Infosys and TCS and all that, if they don't make a quick change, ट्रैकिंग दिस एक्सेंचर पी, ये भी हो सकता है कि टीसीएस, इन्फी और वगैरह वगैरह जो भी उस टाइप का बिजनेस में जो कर रहे थे, उनका पी में और भी गिरावट आ जाए. अभी आप सोचो कि इन्फी टीसीएस का पी 15 से लेके, इफ इट कम्स नियर टू एक्सेंचर, इफ इट कम्स डाउन टू नियर 10 टाइम्स, देन व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द प्राइस? ये सोचने वाली बात है. आप खुद देख लीजिए, एक्सेंचर का पीई को भी ट्रैक करते रहिए, बिकॉज एवरी टाइम आई टेल यू व्हाट यू नीड टू ट्रैक ऑल्सो, बिकॉज मार्केट वो नहीं रहा जहां पर अपन एक ही चीज को ट्रैक करते रहे पहले जैसे. अभी ग्लोबल में ग्लोबल इंडिकेटर्स को ट्रैक करते रहना बहुत जरूरी हो गया है. तो एक्सेंचर को भी ट्रैक करिए, उसका जो वर्किंग है उसको ट्रैक करिए, बिकॉज दिस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू और लीडर्स ऑफ द टेक, the tech team. And if you look at that aspect, you will find that this is really a place where there is a lot of change which is happening, and you must be a little bit on the alert. But IT is not a dead sector, right? IT में कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है. इसलिए मैंने ये हेक्सावेयर और ये HCL टेक में जो नई बात हो रही है उसके बारे में जिक्र किया. अब कोफोर्स ने भी बड़ा कोई, they have also done a large takeover. Your Persistent has also done a large takeover. Now, which will be EPS accretive and business accretive and all that, that you got to keep track. And so many things are happening. But the pecking order in the whole IT thing is changing. That is the main point here. Okay, moving on from this. Where do we go? कीपिंग इट विथ वेयर दी एफआई, पहले मैंने बताया कि भाई एफआई का जहां इंक्रीज हुआ एक सेलेक्ट लिस्ट बताया, और कहा वेयर इट वाज प्रेटी लार्ज एंड द प्राइस एक्शन वाज आल्सो प्रेटी लार्ज. ये एक जनरल लिस्ट मैंने बनाया जहां पर यू डोंट हैव हंड्रेड्स ऑफ 100%, 200%, 300% का बात नहीं है. बट ये एक जनरल लिस्ट है वेयर एफआई होल्डिंग हैज इंक्रीज्ड. तो आप देख सकते हैं कि वो कुछ 15-16 था, इधर एक 15-20 है, यहाँ पर सम अदर नेम्स आर देयर. तो ये भी आप स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नया एक्शन हो ही रहा है. एंड दे आर नॉट स्मॉल मार्केट कैप कंपनीज, so you can see that there is a decent increase, and this is from a little earlier. This is also from public domain only. That was also from public domain. And you can create your own if you want. You can go and look at software like Trendline or Screener.in. यहाँ सब जा करके आप कोई क्वेरी बना करके आप खुद भी ये सब निकाल सकते हैं. But these are all stocks which might be of select interest to some people. No recommendations again, but look at the fundamentals and look at the technicals if you want to have some names to work with for the rest of the year. All right. So moving on further from stock lists, let's go and look. अच्छा, इधर moving on के पहले मैंने इधर कोई चार्ट्स भी डाले हैं, तो आप इधर देख सकते हैं कि भाई ये जो इंक्रीज हुआ, तो ऑल ऑफ देम आर वेयरिंग अ सिमिलर लुक. दे ऑल हैव अ ग्रेजुअल अप ट्रेंड. They all are having a gradual uptrend because there has been a consistent buying by the powerful hands, the larger hands, the stronger hands. अभी आप देख लीजिए जी वर्नोवा
चल रहा है ऊपर, ठीक है। हाल हाल में पिछले महीने में या ये महीने में कुछ इसमें प्रॉफिट टेकिंग आएगी, वो तो आने वाली ही है। some of them will have profit taking for a couple of months, some will have something more. That is part of and parcel of the price move. But what I wanted to show you was that there is consistency in the movement. If you spot stocks like this, FIs and domestics की जिधर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, वो हमेशा एक अच्छा अच्छा स्पॉटिंग के लिए एक, it's a good way of finding out some good stocks, right? So this is something that I've just covered: Hindustan Copper, GE Vernova, Coromandel International, Sale. All of these are gradually going up, and these are all stocks. Along with the others, here there is a very large list of names, right? So I mean, you can check these out and see whether you like any of them. Okay. Now, having talked about all those beyond charts and beyond का beyond बात करने के बाद, let us come to Nifty. तो निफ्टी का वो रेंज से बाहर ही नहीं निकल रहा। ये इस रेंज के बारे में मैंने 3-4 चार्ट्स एंड बियॉन्ड्स के पहले से ही जिक्र कर रहा हूं कि रेंज में अटका हुआ है, अभी भी रेंज में अटका हुआ है। तो आप ये चार्ट को देखेंगे तो उस रेंज में ही फंसा पड़ा है। रेंज के भीतर मैंने एक छोटू सा एक और दिस्टिंग रेक्टेंगल मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर अगर आपका मेरा माउस आपको दिखाई दे रहा है तो ये माउस की तरफ आप ध्यान देखिए, दैट इज स्टिल अ माइनर वैल्यू एरिया दैट इज गॉट बिल्ट, क्योंकि यहाँ पर एक हाई बना है, ये है अराउंड 2025 जुलाई, एंड देन यू कम डाउन टू समवेयर अराउंड जुलाई अगस्त सितंबर, and then the same area is now acting again as some kind of a value resistance area, and all of this is around 24,500 to 24,800. And if you will go back and look at the earlier videos, I have talked in great detail about this, कि as long as we are trapped in this area, our trading strategy etc will remain largely the same, कोई बदलाव नहीं आएगा। न्यूज फ्लो तो आते ही रहेंगे, नए नए स्टॉक इधर उधर जाएंगे, बट आवर ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी विल नॉट चेंज बिकॉज द निफ्टी इज स्टिल रिमेनिंग इन अ रेंज। निफ्टी में कोई बड़ी ट्रेंड आई नहीं है और बड़ी गिरावट भी नहीं आई। हाँ, पिछले टाइम मैंने ये भी आपका अटेंशन खींचा हुआ था कि अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द मिड कैप एंड द माइक्रो कैप, और मिड कैप का स्पेसिफिक मैंने जिक्र किया था कि वहां पर कुछ अलग स्टाइल के मूवमेंट हो रहे हैं। तो यू कैन सी दैट हियर ऑल्सो, इफ यू सी दिस लिस्ट, मेनी ऑफ देम विल यू नो क्वालिफाई फॉर मिड कैप्स। अच्छा, इसी बात में रीसेंट न्यूज में अभी योर एम्फी हैज सेड योर लार्ज कैप का कितना बताया उसने, कुछ 1,03,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है उससे अधिक है, वो लार्ज कैप है। और जो 33,000 करोड़ एंड समथिंग बेटर, दैट इज योर मिड कैप। उसके नीचे जो है वो सारे स्मॉल कैप हो गए, ठीक है। तो ये दिस इज जस्ट एज एन असाइड, दिस वाज सम न्यूज आइटम, पॉसिबली यू माइट हैव रेड इट इन द पेपर, बट जिसने पढ़ा नहीं हो वो मैं आपको बता दूं कि भाई आजकल मिड कैप का जो क्लासिफिकेशन है वो स्लाइटली चेंज हो गया है क्योंकि प्राइसेस में सुधार आ गई है। सो 33,000 and better is what you will look at as being mid cap, right? So that is a change, and it's, I think, quite a big change. So a lot of stocks are going to get reclassified, and then you must watch that because passive funds tracking all these mid cap indices and large cap indices and all that, that there will be fund flow into the stocks which move in, which move out, and all that. So that's another style of investing. So वो आप जरूर देखिएगा। So मोटा मोटा बात यह है कि निफ्टी स्टिल इन रेंज, तो अपने को यहाँ पर कोई विशेष टिप्पणी करने का कोई अवसर मिल ही नहीं रहा, क्योंकि मार्केट इज जस्ट देयर। नीचे आप इधर देखेंगे तो एंटी ट्रेंडर ऑसिलेटर देखेंगे तो सितंबर 24 तक तो ये तो दिस वाज बीइंग consistent in indicating a bullish. After that, it has been choppy. Then there was last May onwards, it again took up this rally up to here, it tracked it,
and as soon as that rally turned around, look at the fall in the positive component. ये positive component तुरंत तो जीरो पहुंच जाता है, तब आपको समझना है कि ये इट इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी बुलिश, और धीरे से ये बेरिश वाला ऊपर आकर के क्रॉस ओवर हो गया। तो समवेयर अराउंड दिस पॉइंट द मार्केट चेंज ट्रैक, और अभी तक उसमें सुधार आई नहीं है। जब सुधार आएगा तो आई विल डेफिनेटली बी कवरिंग इट। दिस इज अ स्पेशल इंडिकेटर दैट आई हैव डिजाइंड, एंड it will be part of Neo Trader very soon, right? This is still in my testing phase, but I have added it into my charting, and therefore it is there. I can plot it. ठीक है, तो अभी ये तो हो गया बात निफ्टी की। हाँ, अभी ये एक चीज आ गया है कि वी आर इनटू अर्निंग सीजन। ठीक है, अर्निंग सीजन आ गया, तो अर्निंग सीजन आ गया तो इट इज बिजी टाइम। अभी समय आ गया फॉर अस टू ऑल बिकम एक्टिव इन द मार्केट, क्योंकि अर्निंग सीजन में बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं स्टॉक्स में। तो मैंने एक एक्टिविटी निकाल कर यहां डाला है। ये एक्टिविटी क्या था, मैनेजमेंट ने पिछले टाइम में, पिछले क्वार्टर के बाद गाइडेंस कैसे दिए फॉर 27। ठीक है, तो इधर से कुछ 1 to 16 टोटल स्टॉक्स है जिसमें मैनेजमेंट का गाइडेंस था, बड़ी ऊंची गाइडेंस दी हुई थी, तो वो सब लिस्ट मैंने इधर लिया हुआ है। सो इधर आप देखिए, देर आर 16 नेम्स। अगेन, नन ऑफ देम इज अ रिकमेंडेशन, प्लीज नोट। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज मोर देन 35% बिजनेस ग्रोथ, ये सब प्रोजेक्शंस है ऑफ द मैनेजमेंट। ये मेरा कोई प्रोजेक्शन नहीं है, मेरा इसमें कोई रिसर्च नहीं है। ठीक है, ये सारे चीज जो है, ये आप इसका फोटो ले करके रख दीजिए और अपना खुद रिसर्च करिए। और इसमें क्या रिसर्च करना, ये एक तो है, ये बोलता है 35%, इधर रेवेन्यू ग्रोथ 35%। एमटार क्यों इतना बढ़ गया, एमटार उधर रेवेन्यू अपन ने देखे, एमटार वॉज इन द लिस्ट वेयर FI built up their position. This is one of the reason why they did, because MTAR gave a guidance कि मेरा 50 से 80% से मेरा जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है 50 to 80%। दिस इज टेरिफिक गाइडेंस, राइट? तो दे आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। अभी ये पहला हाथ रख रहा हूं, दूसरे हाथ आ रहा है, वो भी बताता हूं। तो ऐसे हर एक चीज है, एक्सिसकेड है 52% है, डेटा पैटर्न 25 50 to 60, ये कोई सेनोरस फार्मास्यूटिकल वो भी बोलता है कि भाई मेरा रेवेन्यू ग्रोथ होगा 30 to 40 और पैड ग्रोथ हो जाएगा मेरा 50 से 60%। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। और ये भी वेरियस थिंग्स आर हियर, टीडी पावर सिस्टम, नेटवर्क टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह वगैरह, इसको आप देख लीजिए। अच्छा, अभी आ रहा है दूसरा हाथ। दूसरा हाथ का क्या मतलब कि ये तो अनाउंसमेंट हो गया, अभी क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं, इसके आप जरूर क्वार्टरली नंबर को देखिएगा इन द फर्स्ट क्वार्टर कि ये अनाउंसमेंट हो गए, कितने कंपनी इसमें से आर मीटिंग दिस पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ द मैनेजमेंट। हो सकता है कि सब में मीट, हो सकता है कि सब में भी एक्सीड भी कर जाए, और हो सकता है कि कई इसमें से दे मे नॉट मीट। कोई एक्सक्यूज देगा, बोले ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, वॉर के कारण मैं पिट गया, मेरे कॉस्ट बढ़ गए, इनपुट कॉस्ट बढ़ गए मेरे, बिकॉज आई वॉज अफेक्टेड बाय दिस, उसको क्या कहते हैं, सप्लाई सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स वगैरह मेरे डिस्टर्ब हो गए, वैसा वैसा वगैरह। दे मे गिव यू 15 डिफरेंट excuses or reasons. But what will the market run on? Market will run on wherever this positive expectancy which was mentioned by the management themselves last time, ये अगर मीट कर गए तो इट इज अ फेयरली गुड बेट कि दो स्टॉक्स विल इंप्रूव फर्दर। सो दिस इज सिंपल कॉमन कॉमन सेंस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूं, इसमें ना कोई टेक्निकल की तड़का है, ना कोई फंडामेंटल का एडिशन है, कुछ नहीं, ये खाली कॉमन सेंस है कि भाई मैंने जो गाइडेंस दिया है उसके अनुसार मैंने परफॉर्म किया, तो मतलब ठीक है, तो मार्केट विल पे यू सम प्रीमियम, और वो प्रीमियम देने को तैयार हो गया मार्केट में, और उस स्टॉक को आप ले लेंगे तो आपको भी जाहिर है कि आपको भी 2 रुपया उसमें मिल सकता है। तो ये पर्टिकुलरली मैंने ये डाला हुआ है क्योंकि अभी अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई आई इंसर्टेड दिस
as a slide into episode number 38. All right. So I think pretty much I've covered most of the thing that I wanted to cover here. Now, if you come as usual, a summary of what we have continued. So markets continue to remain in a range. So no change in that. So therefore, trading strategy remains the same. Traders to go both sides up and down, right? Investors to look to buy into dips क्योंकि हर एक जो वेरिएबल आ रहा है वो ये कह रहा है कि मार्केट शुड इम्प्रूव, मार्केट शुड इम्प्रूव, मार्केट शुड इम्प्रूव, राइट? तो इन्वेस्टर्स शुड लुक टू बाय इनटू डिप्स, सो दैट मीन गुड कैंडिडेट्स, थोड़े गुड गुड कैंडिडेट्स का डेफिनेशन क्या हो सकता है और उसके ट्रैकिंग कैसी हो सकती है वो मैंने कुछ ये एपिसोड में कवर कर चुका हूं. Enough action is happening all around us, putting up candidates to trade in or invest into. Action तो काफी है. कोई किसी में नेगेटिव एक्शन है तो किसी में पॉजिटिव एक्शन है. तो ये आप थोड़ा रिसर्च करके आप ढूंढ सकते हैं. कैंडिडेट तो जरूर मिलेगा. ये कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है जो मार्केट में, ये जो बात है दैट इज नॉनसेंस. मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है. ठीक है. और ये जो मैंने कहा, अर्निंग सीजन इज अबाउट टू स्टार्ट एंड आई गिवन यू सम स्टॉक पॉइंटर्स एज मेंशन. गोल्ड सिल्वर का चार्ट मैंने बताया और उसका जो अर्निंग प्लेट भी बताया. तो उसके अनुसार मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर कैन बी एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन अ रेंज फॉर सम टाइम. ये मैं ब्रॉडर आउटलुक के बारे में बता रहा हूँ. कल और परसों गोल्ड बढ़ जाए या सिल्वर बढ़ जाए, आप मत बोलो कि यार अरे ये तो गलत हो गया, भाग गया गोल्ड सिल्वर 100 200 500 रुपया. इट इज नॉट दैट पॉइंट. द पॉइंट इज द ओवरऑल ट्रेंड क्या है. तो वहां पर गोल्ड सिल्वर, माई एक्सपेक्टेशन इज दैट इट विल रिमेन रेंज बाउंड फॉर सम मोर टाइम. They may not be great investment candidates to give you return the rest of 2026, but they can remain good tradable candidates. डोमेस्टिक फंड फ्लो कंटिन्यूस. ये अपन ने देखे वो जो डेटा मैंने दिया था कि डीमैट अकाउंट की इंक्रीज हो रही है, यूनिक डीमैट अकाउंट्स, नए जो डीमैट अकाउंट्स है वो भी ज्यादा हो रहे हैं, और फंड फ्लो एसआईपी वगैरह वो तो बरकरार है. सो डीआईएस का फंड फ्लो टुवर्ड्स द मार्केट भी बरकरार है. एफआई सेलिंग अभी भी जारी है. उनका जो बड़े शॉर्ट पोजीशन इंडेक्स में है उसमें बहुत ज्यादा कटौती तो नहीं हुआ. 2,74,000 कॉन्ट्रैक्ट चले गए थे, वहां से कम होके कुछ 2,54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में अभी भी है. सो इट सीम्स लाइक दे आर अ लिटिल बिट एडमेंट. ठीक है, एडमेंसी अपनी जगह, वो अपने पोजीशन को जाने. मैं ये कह रहा हूं देर आर इनफ पॉकेट्स वेयर देर इज एक्टिविटी एंड दे आर प्रेजेंटिंग यू अपॉर्चुनिटी. वो अपॉर्चुनिटी पे कॉन्सेंट्रेट करिए, वहां से लाभ उठाइए. थोड़े बहुत इंडिकेशन मैंने दी हुई है. हमारे नियो ट्रेडर सॉफ्टवेयर को आप फॉलो करेंगे तो आपको माइक्रो लेवल पे सारा अपॉर्चुनिटी स्पॉट करने का आपको पूरा पूरा एक्टिविटी मिल जाएगा और अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगा. अगर उसमें कोई डिफिकल्टी होता है तो हमारा पूरा सपोर्ट स्टाफ मौजूद है. दे विल हेल्प यू डील डील विद न्यू ट्रेडर. वी हैव regular sessions where we have demo sessions where we also have explanation. We have live explanation or one-to-one. All kinds of supports are there for न्यू ट्रेडर. तो आप न्यू ट्रेडर से जुड़िएगा. अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा तो एक ट्रायल सब्सक्रिप्शन एक क्वार्टर का लेके देखिएगा. पसंद आए तो कंटिन्यू करिएगा. बट मैं दावे के साथ यही कहूंगा कि आपको पसंद तो जरूर आएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही मैंने बनाया है कि जिससे कोई भी किस्म का ट्रेडर, चाहे वो डे ट्रेडर हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडर हो, चाहे वो मल्टी डे ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, everybody can benefit from new trader. So this is a product which is, and it is a product which is undergoing improvement every single day. क्योंकि इसका R&D में मैं पर्सनली इन्वॉल्व हूँ. पूरा दिन मैं इसी में काम पे रहता हूँ कि भाई न्यू ट्रेडर को कैसे मैं बेहतर बनाऊं. सो दिस इज ऑल्सो एन ऑनगोइंग एक्टिविटी ऑफ माइंड. तो न्यू ट्रेडर जरूर देखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा. एंड इफ यू हैव बीन हियर अंटिल द एंड ऑफ दिस स्लाइड, आई थैंक यू वेरी मच. एंड अंटिल आई सी यू अगेन, हमारा चैनल को जरूर जुड़िएगा,
Share it and like it if you have liked what you have seen and heard so far. And until we meet again in episode number 39 or any of my other videos, this is Dr. Narayan bidding goodbye. And until we meet again, thank you so much.